الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیوں ان سے تم مدد مانگو، واہ. سنیوں ان سے تم مدد مانگو، شرک و بدعت بقا کرے کوئی. کیا بات ہے. اور نام جپتے رہو عبید ان کا. سبحان اللہ. نام جپتے رہو عبید ان کا، گرچہ جل کر بھونا کرے کوئی. واہ. گرچہ جل کر بھونا کرے کوئی. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہم عمر دوستو، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، اسلام کی حیادار باعزت ماؤں اور بہنوں، کچھ عرض و معروض سے پیشتر دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ عشق رسالت کے سمندر میں ڈوب کر بارگاہ سرکاری مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر پورا مجمع ایک ساتھ مل کر والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ، خادمانہ، ایماندارانہ انداز میں جھوم جھوم کر بآواز بلند دائیں سے لے کر بائیں تک اور بائیں سے لے کر دائیں تک، لیفٹ رائٹ چھوڑ کر لیفٹ سے لے کر رائٹ تک اور رائٹ سے لے کر لیفٹ تک سارے احباب اہل سنت ملے جلے انداز میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا طبیب قلوبنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات، آج ہماری اور آپ کی یہ انتہائی خوش نصیبی ہے اور جماعت نور الاسلام کے ذمہ داران کی خصوصیت کے ساتھ خوش نصیبی ہے اور گوئندی کے سارے خوش عقیدہ مسلمانوں، عاشق غوث و خواجہ رضا کے لیے سعادت کی بات ہے اور یہ عظیم مزدہ جاں فضا ہے کہ آج آپ کے سامنے بنفس نفیس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی جسمانی یادگار نبیر اعلیٰ حضرت شہزاد ریحان ملت حضرت بابرکت حضرت والا درجت حضرت علامہ قاری الحاج الشاہ محمد تسلیم رضا خان صاحب قبلہ، جو برائیلی شریف میں تصنیفات اعلیٰ حضرت اور تصنیفات مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان اور دیگر علماء اہل سنت کے تصانیف کو عوام اہل سنت تک پہنچانے کے لیے امام احمد رضا لائبریری کی بنیاد بھی حضرت نے رکھی
तो बानी इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी भी हैं सुभान और अल्लाह, नबीर आला हजरत भी हैं सुभान और अल्लाह, शहजादे रहाने मिल्लत भी हैं, बेशक, जिनकी जियारत आप अपने माथे की निगाह से कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, आज फकीर अपने वादे के मुताबिक गुफ्तगू वही करेगा। मैंने जैसा कि कल वादा किया था कि जन्नती फिरका कौन है, वाह, और इसी की हिमायत ताईद किताबो सुन्नत से दलील आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फादले बरेलवी ने फराहम फरमाया है। और आज उन्हीं के शहजादे के सामने उसी चरागे मोहब्बत को मैं आपके दिलों के अंदर जलाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़हनो फिक्र को हाजिर फरमाएं। टाइम रोजाना मेरे लिए कम ही हो जाता है। आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत, मोहब्बत से बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? आला हजरत वही इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान, बनफ्से नफीस, बजाते खुद, जाहिरी जिस्म के साथ मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफम व तकरीमा हाजिर हैं। बारगाहे रिसालत मआब है और एक शाने तगज़्ज़ुल लिए बड़ी अजीम नात आला हजरत ने बारगाहे मुस्तफा में पेश की थी। सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं वो सुए लाला जार फिर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह, इतना तेज बोलें कि आवाज हम तक आए। वो सुए लाला जार फिरते हैं और तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आए रात तू काबिले मुबारकबाद है, आए दिन तू काबिले मुबारकबाद है, आए चांदो सूरज तुम काबिले मुबारकबाद हो, आए आसमान के तारों तुम काबिले मुबारकबाद हो, आए फलक के सितारों तुम काबिले मुबारकबाद हो, आए चांदो सूरज तुम काबिले मुबारकबाद हो कि हम तो आज और तुम्हें रोजाना हाजिरी का मौका मिल रहा है। सुभान अल्लाह, रोजाना हाजिरी की सआदत मयस्सर हो रही है। वो सुवे लाला जार फिरते हैं और तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। और आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस नात के अंदर हर शेर में फिरने का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है और तकरीबन हर शेर में फिरने के लफ्ज को इस्तेमाल फरमाकर अलग अलग माना में इस्तेमाल फरमाया है। मैंने तो लखनऊ की सरजमीन पर नदवा के करीब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ताजुश शरिया हजूर अजहरी मियां साहब किबला भी जलवा कर थे। मैंने उस मौके पर यह जुमला अदा किया था, इस शेर के हर शेर में फिरने का लफ्ज है और तकरीबन अलग अलग माना में इस्तेमाल फरमाया है। इसके फसाहत व बलागत का जवाब नहीं दे सकते हो, लेकिन आज आप गौर करेंगे तो फिरने वाले बहुत नजर आते हैं। नगर नगर फिरते हैं, डगर डगर फिरते हैं, शहर शहर फिरते हैं, जगह जगह फिरते हैं, इधर उधर फिरते हैं, खोली खोली फिरते हैं, रूम रूम फिरते हैं। अरे बोलो गोइंडी के मुसलमानों, फिरते हैं कि नहीं फिरते हैं? और फिर करके कहीं ये कहा जाता है कि हजरत साहब से कह दीजिए कि मसलक से हट करके कुछ इस्लाही गुफ्तगू करें। मैं पूछना चाहता हूं ये इस्लाह मसलक में है कि नहीं है? इस्लाह मसलक में है और नबी के मोहब्बत का पैगाम भी मसलक में है। ये सब के मजमुआ का नाम मसलक है। आओ जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। फिरने वाले बहुत फिरते हैं, इधर उधर फिरते हैं, दर बदर फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, जलीलो खार फिरते हैं, इधर उधर फिरते हैं। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? तो मसीहुद्दीन नहीं कहता, आला हजरत ने सबब बता दिया। अरे ये इधर उधर इसलिए फिरते हैं, वजह ये है कि जो उनके दर से यार फिर
करते हैं, सुभान जो अल्लाह, उनके दर से यार फिरते हैं, अरे दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, बेशक दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई कलाई को पकड़ करके और कह सकता है मसीहुद्दीन मेरा फिरना तुमको नजर आया, लेकिन तुमको अपना फिरना नहीं नजर आता है। कभी बंगाल फिरते हो, कभी कश्मीर फिरते हो, कभी बिहार फिरते हो, कभी यूपी में फिरते हो, कभी महाराष्ट्र में फिरते हो, कभी कलियर जाते हो, कभी अजमेर फिरते हो, कभी बरेली में फिरते हो, कभी मारहरा में फिरते हो, कभी पीलीभीत में फिरते हो, कभी बगदाद में फिरते हो। तो तुमको हमारा फिरना नजर आया और तुमको अपना फिरना नजर न आया, तो हजरत फकीर बड़ी वदाहत के साथ आला हजरत सरकार के हवाले से कहेगा, ये जहां फिरते हैं आपको आला हजरत ने पता बता दिया, लेकिन ये अहले सुन्ना और ये सुन्नी कहां फिरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैं उस गली का गधा हूं जिसमें, मैं उस गली का गधा हूं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, मसलके आला हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जहन को हाजिर फरमाएं, आवाज बढ़ाइए या तो माइक ही हटाइए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। अगर आज मेरे मुअल्ला हाजिरी हुई, कहने वाले ने कहा ये तो कब्र को सजदा कर लिया। आला हजरत सरकार के यहाँ हाजिर हुए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। साबिरे पाक के यहाँ गए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। बगदादे मोहल्ला गए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। आज यही जुमले का सहारा लेकर के सुन्नियों को कहा जाता है ये कब्र पुजवा पार्टी है। आज मैं ये साबित करूंगा ये कब्र पुजवा पार्टी नहीं बल्कि ये जन्नती पार्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जन्नती पार्टी से ताल्लुक है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलिए। जब तक के फकीर साबित नहीं कर देगा मैं कुर्सी से उठ नहीं सकता हूं। ये कब्र पुजवा पार्टी नहीं बल्कि ये जन्नती पार्टी है। बेशक, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जरा बुलंद आवाज से बोलो। जहन को हाजिर फरमाइए, मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्मो फन, जिनके लिए कहा जाता है ये मुजद्दिदे दीन नहीं है बल्कि ये मुजद्दिदे बिदअत है माअल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज करना चाहूंगा बारगाहे रिसालत मआब में आला हजरत सरकार बनफ्से नफीस हाजिर हैं। एक पाकीज़ा तमन्ना है, एक पाकीज़ा आरज़ू है, एक पाकीज़ा ख्वाहिश है, एक पाकीज़ा आरज़ू है। अर्ज करते हैं ए सरकार ख्वाब में करम फरमाया है और ए मेरे आका जलवा दिखाया है। अहमद रजा की तमन्ना है कि जीते जी होशो हवास के साथ और माथे की नजर से ए मेरे आका पर्दा हट जाए और अहमद रजा दीदार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे सरकार जलवा दिखाए, पर्दा हटाए, तमन्ना पे तमन्ना, आरज़ू पे आरज़ू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश, तमन्ना पे तमन्ना, आखिरकार दरियाए करम जोश में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान या मोहब्बत से बोलो। दरियाए करम जोश में आया। तारीख बताती है कि हिजाबात हट जाते हैं और जीते जी होशो हवास के साथ आला हजरत सरकार के चेहरे का दीदार कर लेते हैं। सरकार के चेहरे का दीदार कर लेते हैं। हजरत यहीं से नबी का इख्तियार भी साबित होता है और मेरे सरकार का हयात भी साबित। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब यहीं पर ठहरो, जमाले जहां आ रहा आला हजरत के सामने है जिनका ये इल्जाम है कि बाइलवी पार्टी ये कब्र पुजवा पार्टी है। मैं कहूंगा होश का इलाज करो और तारीख के चेहरे पर धूल मत डालो। आला हजरत के अमल को देखो, नबी का चेहरा सामने है, आला हजरत की मोहब्बत की जबान खुलती है। अर्ज करते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सुभान अल्लाह, सुभान पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कब्र को पूजने का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के इबादत का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के परस्तिश का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के सज्जा करने का हुक्म दिया होता, तो जब नबी का जलवा देखा था तो सर को झुका देते, सजदा कर लेते। मगर आला हजरत फरमाते हैं, ए अहमद रजा, सजदा दो तरह का होता है, एक सज्दा इबादत है और एक सज्दा ताज़ीमी है। इबादत का सज्दा खुदा को किया जाएगा, गैर खुदा को, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो गौस हो, चाहे वो कुतुब हो, गैर खुदा को इबादत का सजदा करना ये शिरक है। और शिरक इतना बड़ा गुनाह है, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। और गैरुल्लाह को ताज़ीम का सजदा करना नाजायज़ व हराम है। अगर कोई ताज़ीम का सजदा गैरुल्लाह को करता है तो गुनहगार होगा, नाजायज़ व हराम है गैरुल्लाह को ताज़ीम का सजदा करना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। यानी आला हजरत का इम्तिहान आज बारगाह मुस्तफा में हो रहा है। अगर सजदा कर लेते हैं तो शरीयत से जाते हैं, इसलिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने खुद ही एक किताब लिखी है जिसका नाम अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किय्या फी तहरीम सुजूद तहिय्या है, जिसमें फरमाते हैं गैरुल्लाह को इबादत का सजदा करना ये शिरक है, ये कुफ्र है। और गैरुल्लाह को ताज़ीम का सजदा करना ये नाजायज़ व हराम है। गोया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कब्रों को पूजने का हुक्म नहीं दिया, कब्रों के सजदा का हुक्म नहीं दिया। अब आज आला हजरत का इम्तिहान बारगाह मुस्तफा में हो रहा है। अगर सजदा कर लेते हैं तो शरीयत से जाते हैं, शरीयत की तलवार लटक रही है। अगर सजदा करते हैं तो शरीयत की तलवार चल जाएगी, और अगर सजदा नहीं करते हैं तो बज़ाहिर मोहब्बत का तकादा है। ए अहमद रजा, बगैर देखे दुरूद पढ़ते थे, पढ़वाते थे, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अहमद रजा, बगैर देखे सलाम पढ़ते थे, पढ़वाते थे, दूर थे सलाम पढ़ते थे, पढ़वाते थे, और आज तो बिल्कुल करीब आ चुके हो। आज अनदेखे का मामला नहीं है, माथे की नजर से देख रहे हो। ए अहमद रजा, अगर आज भी दुरूद ही सलाम पढ़ते हो तो आखिर देखे अनदेखे में फर्क क्या रहेगा, दूरो करीब में फर्क क्या रहेगा। आला हजरत का इम्तिहान आज बारगाह मुस्तफा में हो रहा है। सजदा कर लेते हैं तो शरीयत से जाते हैं, और सजदा नहीं करते हैं तो बज़ाहिर मोहब्बत कदा होती है। हमें आप देखना यह है कि आला हजरत का जो इम्तिहान नबी की बारगाह में हुआ, इस इम्तिहान में कहां तक के कामयाब हैं। याद करो गोइंदी के मुसलमानों, अरे इसी इम्तिहान में कामयाबी का नतीजा है कि आला हजरत तो आला हजरत के शहजादे, इनका दर्जा बहुत बुलंद। आला हजरत का गुलाम जिस मैदान में जाता है तो फतह कामयाबी का झंडा देता है, फतह कामयाबी का झंडा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सादे बरेलवी का इम्तिहान आज नबी की बारगाह में हो रहा है। जरा इस इम्तिहान की कामयाबी देखो और आला हजरत का फैसला देखो, और यहीं से अकीदा लो, ये सुन्नी कब्र पूजने वाली पार्टी नहीं है। कब्र को पूजने को शिरक हम कहते हैं, और इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। याद करना, आला हजरत एक दूसरी जगह फैसला करते हैं, ऐशों के दिल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए, ऐशों के दिल, ऐ दिल घबराना, क्या बात, ऐ दिल परेशान ना हो, ऐ दिल मुस्तरिब ना हो, ऐ दिल आलम इस्तिराब में ना हो, ऐ दिल, ऐ दिल, ऐशों के दिल, ये सजदागर, सारे लोग मेरी तरफ देखें, ऐशों के दिल, ये सजदागर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए, सर को खबर न हो, अच्छा वो सजदा कीजिए, सर को खबर न हो। मतलब यह है, ए अहमद रजा, अगर शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदा पर पाबंदी लगाई है, मगर दिल के सजदा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, दिल के सजदा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लिहाजा ए अहमद रजा, सर झुके खुदा की बारगाह में, और ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में, ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का आलम ये है कि शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है तो दरबारे हक में फिर वो इबादत कबूल है। या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे और मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वही काबा दिखाई दे
और सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। अरे मोहब्बत से बोलो, बेशक जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। अल्लाह ने जन्नत को भी पैदा फरमाया, बेशक जहन्नम को भी पैदा फरमाया, जन्नत और के रास्ते को पैदा फरमाया, जहन्नम के रास्ते को पैदा फरमाया। जो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं उनको भी पैदा फरमाया, जो जहन्नम के रास्ते पर चल रहे हैं उनको भी पैदा फरमाया। मेरी तकरीर का एक एक जुमला बहुत गौर से समाप्त फरमाइए। हर चीज का खालिक व मालिक अल्लाह है। जहन में एक बात आती है कि आखिर सबका खालिक अल्लाह है। जन्नत को खुदा ने पैदा फरमाया, जहन्नम को खुदा ने पैदा फरमाया, जन्नत के रास्ते को खुदा ने पैदा फरमाया, जहन्नम के रास्ते को खुदा ने पैदा फरमाया। हमें इंसानों को अक्ल अता फरमाई ताकि गलत और सही में तमीज कर सकें, और अक्ल ना काफी हो तो बंदों के हिदायत के लिए रसूल को पैदा फरमाया, नबी को पैदा फरमाया, वहादी को पैदा फरमाया। हजरात जहन को हाजिर करना। अब सवाल जहन में आता है, क्या जहन्नमी और जन्नती बराबर हैं? तो कुरान पर हम सारे मुसलमानों का ईमान है, कुरान के नुक्ते नुक्ते पर ईमान है, कुरान के ज़ेरो ज़बर पर ईमान है, कुरान के रुकू रुकू पर ईमान है। बोलो मुसलमानों, ईमान है कि नहीं है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बता दे। हम सब का ईमान अल्लाह के कलाम कुरान पर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मोहब्बत अल्लाह। से बोलो, कुरान पर ही मान। मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान तू बता, क्या जन्नती और जहन्नमी क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। कुरान फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। जन्नती और जहन्नमी ये बराबर नहीं। दूसरा सवाल जहन में आता है, चलो ठीक, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, मगर कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? आया जन्नत के रास्ते पर चलने वाला कामयाब है या जहन्नम के रास्ते पर चलने वाला कामयाब है? मेरी मत मानो, पैदा करने वाले खुदा की मानो। सुभान अल्लाह। मेरी मत मानो, पैदा करने वाले खुदा की मानो, उसके कलाम कुरान की मानो। अल्लाह फरमाता है, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, और जो जन्नती है वही कामयाब है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जन्नती है वही कामयाब है, जो जन्नती है वही कामयाब है। मगर मसला ये है, आज यही नारा सबकी जबान पर है। बोलो गोंडी के मुसलमानों है कि नहीं है? सबकी जबान। अहले सुन्नत का तो ऑलरेडी दावा है ये, हम जन्नती। सुन्नी कहे हम जन्नती, वहाबी कहे हम जन्नती, शिया कहे हम जन्नती, गैर मुकल्लिद कहे हम जन्नती, बहाई कहे हम जन्नती, बाबाई कहे हम जन्नती, मिर्जाई कहे हम जन्नती, एहरारी कहे हम जन्नती, खाकसारी कहे मैं जन्नती, अहले हदीस कहे मैं जन्नती, अहले कुरान कहे मैं जन्नती, चकरालवी कहे मैं जन्नती, खारिजी कहे मैं जन्नती। अमा जितना कलमा पढ़ते हैं जितने लोग सब कहते हैं मैं जन्नती। वो लोग कहते कि नहीं कहते हैं? मेरी पार्टी, निजात का रास्ता मेरा रास्ता, मुक्ति का रास्ता मेरा रास्ता, शांति का रास्ता मेरा रास्ता, जन्नत में ले जाने वाला रास्ता मेरा रास्ता। अरे बोलो बात सही है कि नहीं सही है? सबका दावा है। अब एक सादा लोह इंसान जो दीन की मालूमात ज्यादा नहीं रखता है, अब वो असमंजस में पड़ गया, वो वर्ताए हैरत में पड़ गया। मौला ये भी कहते मेरा रास्ता जन्नत का, ये भी कहते मेरा रास्ता जन्नत का, वो भी कहते मेरा रास्ता जन्नत का, वो भी कहते मेरा रास्ता जन्नत का, और सबकी जबान पर कलमा है। हम किसकी माने और किसकी ना माने? बाद लोग तो ये कहते हैं हम क्या जाने कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। चलो ये कहकर दामन बचा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आखिरकार जब सब कहते हैं तो हम किसको किसको कहते चलेंगे। लेकिन एक गोइंदी के मुसलमानों, मैं इस वक्त न बरेली चलना चाहता हूँ, न देवबंद चलना चाहता हूँ, बल्कि बंबई की सरजमीन से मैं सीधे मदीना ले चलना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। बात अर्ज करूंगा, अपने नबी से पूछो, ए मेरे सरकार, सबका
सबका दावा मैं जन्नती मैं जन्नती मैं जन्नती मैं जन्नती। तो आका आप ही बयान फरमा दीजिए कौन जन्नती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, ए मेरे सरकार आप ही फरमाइए कौन जन्नती। मेरे आका हैं, सहाबा को खिताब फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, बनी इसराइल के 72 फिरके थे, 77 को उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला फिरकतन वाहिदा। वाह क्या बात, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और सुभान बुलंद आवाज अल्लाह, से बोलो। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, ए सहाबा, बनी इसराइल के 72 फिरके थे, 77 को उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका, और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। अल्लाह अकबर। अरे बोलो, मालूम है कि नहीं मालूम है? कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला फिरकतन वाहिदा, सब जहन्नमी मगर 73 में एक जो होगा वही जन्नती। बेशक बेशक। मोहब्बत से बोलो, 72 जहन्नमी और एक जन्नती, 72 जहन्नमी और एक जन्नती। जन्नती। अब मसला ये है, सब इसी हदीस को पढ़ते हैं, वो एक जो जन्नती वो मैं हूं, वो एक जो जन्नती वो मैं हूं, वो एक जो जन्नती वो मैं हूं, वो एक जो जन्नती वो मैं हूं। बोलो, सबका दावा है कि नहीं है? अरे बोलो मेरे भाइयों, यही हदीस में इन्हीं पढ़ी जाती है, हम सुन्नी भी पढ़ते हैं। वो एक फिरका जो जन्नती है वो मैं हूँ, वहाबी भी कहते हैं वो एक फिरका जो जन्नती वो मैं हूँ, गैर मुकल्लिद भी कहते हैं वो एक फिरका जो जन्नती वो मैं हूँ, शिया भी कहते हैं वो एक फिरका जो जन्नती वो मैं हूँ। सबका दावा है कि वो एक फिरका जो जन्नती है वो मैं हूँ। मैंने कहा सुनो, मैं बरवक्त किसी की न मानूंगा, पूछो नबी से, ए मेरे सरकार, वो एक जो जन्नती वो कौन है? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो एक जो जन्नती है वो कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, है मेरे आका, 73 में 72 जहन्नमी और एक जन्नती, सबका दावा होगा वो एक मैं हूँ, वो एक मैं हूँ, वो एक मैं हूँ, वो एक मैं हूँ, वो एक मैं हूँ। तो ये मेरे आका, हम कैसे पहचाने? उसकी पहचान क्या है? उसकी अलामत क्या है? उसकी निशानी क्या है? वो एक फिरका जो जन्नती है वो कौन है? नबी फरमाते हैं, वमा अना अलैहि व असहाबी, क़यामत तक के मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर जो रहेगा वही मुसलमान जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फकीर एक जुमले में अहले सुन्नत की तारीफ करना चाहेगा। वमा अना अलैहि व असहाबी का जो मिस्दाक है वही बरेलवी, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही अहले सुन्नत वल जमात है। बेशक। जो नबी और सहाबा के तरीक़ेकार और उनके अकीदे पर जो होगा वही क़यामत तक के मुसलमान जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। अब मसला यहाँ आया, चलो ठीक है, जो सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती। बेशक। अब जुमले की हिफाजत करो, लिखने वालों लिखो, टाइप करने वालों टाइप करो, दिल की तख्ती पर नक्श कर हजर करो। अहले सुन्नत के जितने अकाईद हैं जिसकी वजाहत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई है, वो सारे अकाईद बरेली का खाना साथ। और बुलंद आवाज से बोलो, यही भारत की सरजमीन है, दिल्ली की सरजमीन है। हालात बदलते हैं, दो जमातें आमने सामने हैं। पूछने वाले ने पूछा, ये किसका मिंबर है? कहा ये वहाबी का है। सामने एक दूसरा मिंबर, ये किसका है? कहा अहले सुन्नत का है। क्या होगा? मुनाजरा होगा। हालात बदले, फिर दो मिंबर लगे, ये किसका है? ये गैर मुकल्लिद का है। ये सामने किसका मिंबर है? अहले सुन्नत का है। क्या होगा? मुनाजरा होगा। फिर हालात ने करवट लिए, दो मिंबर सकते हैं आमने सामने, ये किसका मिंबर है? ये खारिजी का है। सामने वाला किसका है? ये अहले सुन्नत का है। क्या होगा? मुनाजरा होगा।
پھر حالات بدلتے ہیں، تاریخ نے کروٹ لیا، 2 ممبر سجتے ہیں، یہ کس کا ہے؟ یہ خاکساری کا ہے۔ سامنے والا کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ پھر حالات نے کروٹ لیے، 2 ممبر سجتے ہیں، یہ سامنے والا کس کا ہے؟ قادیانی کا ہے۔ یہ مقابل میں ممبر کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ پھر حالات بدلتے ہیں، تاریخ نے کروٹ لیا، 2 ممبر لگتے ہیں، سامنے والا کس کا ہے؟ یہ احراری کا ہے، مقابل میں کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ اے گوئندی کے مسلمانوں، نبی کے محبت کا چراغ سینے میں جلاؤ، تعصب کے عینک کو پھوڑ دو، عداوت کے شیشے کو چکنا چور کرو، اور نبی کے محبت کا چراغ ہاتھ میں لے کر کے حق کو تلاش کرو کہ ادھر کہیں ہے، کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے، واہ ادھر کہیں ہے، واہ، اور سب کے مقابل میں اہل سنت وہی ہے۔ سچ ہے۔ میں کچھ نہ کہوں گا، حدیث آپ کے سامنے، تاریخ آپ کے سامنے، فیصلہ کر لو کہ ادھر کئی ہے اور اہل سنت سب کے مقابل میں تنہا اکیلے۔ فیصلہ کرو کہ جو 72 ہیں سب ایک طرف ہیں، اور جو ایک ہے وہ سب کے مقابل میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کوئی اپنی کثرت پر ناز نہ کرے، اپنے تکثر پر غرور نہ کرے، ان کا کئی ایک ہونا یہ جہنمی ہونے کی دلیل ہے، اور سنی کا ایک ہونا یہی جنتی ہونے کی دلیل ہے، یہی جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے، واللہ جو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اور اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ، اور بڑا نواز سے بولو۔ لیکن کل کوئی میری تقریر میں میم میخ نکال سکتا ہے؟ مولانا نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہی صحابہ کے عقیدے ہیں، تو سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، بے شک بے شک۔ اگر تو محبت سے بولو سبحان اللہ، اور بڑا نواز سے بولو۔ لیکن کل کوئی میری تقریر میں میم میخ نکال سکتا ہے؟ مولانا نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہی صحابہ کے عقیدے ہیں، تو سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، بے شک بے شک۔ اگر عقیدہ ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، نبی کا علم غیب عطائی ہے، بے شک۔ خدا کا علم غیب ذاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں تحریر فرماتے ہیں خدا کے لیے علم غیب ذاتی، نبی کے لیے عطائی، اور اگر کوئی نبی کے لیے ذاتی مانے تو یہ شرک۔ بے شک۔ تو ایک جملہ میں عرض کروں گا، وہابی جس کو شرک کہتے ہیں وہ شرک ہے نہیں، اور جو شرک ہے اس کو سمجھا نہیں، بے شک نہیں سمجھے۔ جو شرک ہے اسے سمجھا نہیں، اور جسے شرک کہتے ہیں وہ شرک ہی نہیں۔ تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، پورا مجمع بولے علم غیب اللہ نے نبی کو دیا ہے۔ اب یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ میں نے دعویٰ کیا ہے جو سنیوں کا عقیدہ ہے وہی صحابہ کا عقیدہ۔ بے شک بے شک۔ اب ذرا سا ہم ڈھونڈیں کہ نبی کے تعلق سے علم غیب کے مسئلے میں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے، تو یاد کرو مولا علی شیر خدا، محبت سے بولو، سبحان اللہ، امام حسن و حسین کے والد، سبحان اللہ، داماد مصطفیٰ، خلیفہ رسول اللہ، سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ ہے۔ ایک منافق جس کے زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر کا طوطا ہے، اس نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ بات شدہ مولا علی شیر خدا تک پہنچتی ہے کہ ایک منافق نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا ہے، مولا علی کو جلا لگا،
اللہ मौला अली को जलाला गया, फरमाया ऐलान करो मदीना के सारे मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। खुद मिंबर पे बैठ गए, फरमाते सलूनी अम्मा दून अर्श। ए लोगों, तुम नबी के इल्म की बात करते हो, आज अली से जो चाहो वो पूछो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के इल्म की बात करते हो, आज अली से जो चाहो वो पूछो। यहीं पर ठहरो मुसलमानों और जहन को हाजिर करो। मुनाफिक ने नबी के इल्म गैब पर एतराज किया, मौला अली को जला लाया। ऐ गोलाई के मुसलमानों, यही तेवर लेकर जाओ। पता चला कि इल्म गैब पर एतराज करना ये मुनाफिक की आदत है, और एतराज को सुनकर आलम जलाल में आना ये मौला अली की सुन्नत है, ये मौला अली की सुन्नत है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जलवागर हैं, फरमाते सलूनी अम्मा दुल अर्श, आज मुझसे जो चाहो वो पूछो। एक शख्स खड़ा हुआ अर्ज किया, ए हजरत अली, आपका दावा है जो चाहो वो पूछो, तो एक चीज पूछना चाहता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। फरमाते कहो क्या कहना चाहते हो? अर्ज किया सरकार, एक बात बताओ, आपने अल्लाह को देखा है? आपने खुदा को देखा है? बहन को आगे फरमाइएगा। मौला अली शेर खुदा सर झुकाते हैं, थोड़ा तवक्कुफ फरमाते हैं, सरे नाज उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए पूछने वाला सुन ले, अली जब सर को सजदे में रखता है तो उस वक्त तक के सर को नहीं उठाता जब तक के तजल्लियात रब्बानी का दीदार नहीं कर लेता है, तजल्लियात रब्बानी का दीदार नहीं कर लेता। ऐ गोइंदी के मुसलमानों, ऐलान कर दो आला हज़रत के सदक़े में, जब अली के इल्म का यह हाल हो तो नबी के इल्म का क्या हाल होगा, नबी के इल्म का क्या हाल होगा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुमसे। करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मोहब्बत से बोलो। और बात इल्म गैब की आई है तो क्यों ना मसला बिल्कुल साफ ही कर दूं। बोलो, तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है तो जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, हाथ को नीचे करें। अल्लाह के प्यारे नबी, मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा आला नबी गना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, या अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, मैं देखना चाहता। सुभान अल्लाह। रब का इरशाद होता, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। इसरार बढ़ा, हजरत मूसा आला नबी गना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर तशरीफ ले जाते हैं, 40 यौम रहते हैं। अल्लाह ने तूर पहाड़ पर अपने जलवे की तजल्ली फरमाई। सारे लोग इधर मुतवज्जे हो जाएं। तजल्ली फरमाई, और उस तजल्ली की एक झलक का दीदार हजरत मूसा ने की। सुभान अल्लाह। उस तजल्ली के एक झलक का दीदार हजरत मूसा ने किया। अल्लाह की जात को नहीं देखा, बेशक तजल्ली के एक झलक को देखा। और आलम यह है, फखर्रा मूसा साएका, हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पे, काबे नजारा न ला सके। एक जलवे के एक झलक को देखा, लेकिन जब तूर से वापस होने लगे, हुक्म होता है, पैगंबर मूसा अब तुम्हारी नजर वो नजर नहीं है जो पहले की नजर थी, अब ये नजर तो वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। ये नजर वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा। ए मूसा, अब तुम्हारी नजर में इतना जलाल है कि जो तुम्हारी नजर देखेगा उसकी आंख फूट जाएगी, आंख बढ़ जाएगी, हल्के चश्म से आंख निकल आएगी। अपने चेहरे पर निकाब डाल, ताकि लोगों की डायरेक्ट नजर आपकी नजर से ना मिले।
और लोगों की आंख न बहे। हजरत मूसा वापसी में अपने चेहरे पर निकाब की पट्टी डालते हैं, घर तशरीफ लाए। आपकी बीवी, आपकी शरीके हयात हजरत सफूरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि चेहरे पर निकाब की पट्टी है। अर्ज किया, हुजूर निकाबे रुख पलटिए और चेहरे का जलवा दिखाइए। हजरत मूसा के चेहरे पर निकाब की पट्टी है। अर्ज करती है हजरत सफूरा, ए हजरत मूसा, क्या कोई अपनी बीवी से पर्दा करता? क्या कोई अपनी बीवी से पर्दा करता है? हजरत मूसा फरमाते, ए सफूरा, ये मूसा की नजर वो नजर नहीं है जिसे तू देखा करती थी। अरे ये नजर वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा है। अब इसमें इतना जलाल है कि ए सफूरा, अगर मेरे नजर को देखोगी तो तुम्हारी आंख फूट जाएगी, अल्लाह अकबर, आंख बह जाएगी, ताबे नजारा न ला पाओगी। हजरत सफूरा ने अर्ज किया, ए हजरत मूसा, जब ये बात है तब तो जरूर देखूंगी। क्या बात है, जब ये बात है तब तो जरूर देखूंगी। हजरत मूसा फरमाते हैं, सफूरा, आंख बहेगी, आंख निकल आएगी। हजरत सफूरा ने अर्ज किया, ए हजरत मूसा, आंख रहे या जाए, मगर अब तो सफूरा उस नजर को देखेगी जिस नजर ने अल्लाह का जलवा देखा है, जिस नजर ने अल्लाह का जलवा देखा है। हजरत मूसा फरमाते हैं, अगर नहीं मानती हो तो लो, मैं अपने चेहरे से नकाब की पट्टी हटाता हूँ। हजरत मूसा नकाबे रुख पलटने वाले हैं, उधर हजरत सफूरा ने अपने आंख पर एक हाथ रख लिया कि जाए तो एक ही जाए, सही, जाए तो एक ही जाए, हटे नकाबे रुख। तारीख बताती है हजरत मूसा ने नकाबे रुख को हटाया, हजरत सफूरा की नजर ने देखा, नजर से नजर मिली, आंख बाहर आ गई। अल्लाह अकबर, आंख बाहर, मगर इस आंख के निकलने में इतनी लज्जत मिल गई कि फौरन दूसरी आंख से हाथ को हटा दिया। सुभान अल्लाह, हाथ को हटा दिया। जहन को हाजिर फरमाइएगा, अब दूसरे हाथ को जब हटाया तो दूसरी आंख बाहर और पहली अंदर। वाह, सुभान अल्लाह। और आन की आन में दूसरी भी अंदर, और अब दोनों आंखें इतनी रोशन कि पहले जो बीनाई थी उसके कई गुना रोशनाई मिल गई है, रोशनाई मिल गई है। अब लगातार टकटकी बांध कर मुसलसल कंटिन्यू हजरत सफूरा हजरत मूसा की नजर को देखती हैं। न आंख बहती है, न आंख फूटती है, न हल्के चश्म से निकलती है। आखिर बात क्या है? इसलिए कि पहले जो नजर खुदा ने दी थी वो आलम के नजारा के लिए, और आंख बहने के बाद खुदा ने जो नजर दी है उस नजर को देखने के लिए जिस नजर ने अल्लाह का जलवा देखा है, जिस नजर ने अल्लाह का जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये हजरत मूसा ने अल्लाह के तजल्लियात में से एक जलवे के एक झलक को देखा तो नजर में जलाल का आलम ये है, मगर जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो जमाल का आलम क्या, जमाल का आलम क्या है। फरमाया गया कि अल्लाह के जलवे को हजरत मूसा की नजर ने देखा तो जमाल का आलम ये है।